اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وقال اللہ تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، بزرگو، بھائیو، کل ایک بہت افسوسناک کانوں کے اندر یہ بات آئی ہے، بہت ہی درد دل اور بڑی لجاجت، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو پیار اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، پتہ نہیں ہماری زبانوں کے اوپر ایک بس صرف محبت کا ایک افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، پتہ نہیں کیا۔ میرے دوستو، بزرگو، بھائیو، کہتے ہیں کہ پاکستان کا موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اور اس کا ایک وفد وہاں مدینہ منورہ گئے تو وہاں پہ کچھ سابقہ وزیر اعظم کے، سابقہ پارٹی کے، عمران خان کے کچھ جیالے وہاں پہ موجود تھے۔ جس وقت موجودہ وزیر اعظم اور اس کے ہمراہ وفد تھا جو ان کا وزیر مشیر تھے، وہاں مدینہ منورہ میں پہنچے، بقول ان کے مانتے یہ بھی ہیں کہ وہ مدینہ رسول سے ذرا باہر تھے، روضہ رسول سے مسجد نبوی کے باہر تھے۔ پہلے تو آپ کی بات مان لیتے ہیں، چلو مسجد نبوی کے باہر تھے، روضہ رسول سے باہر تھے۔ مجھے یہ بتائیں، کوئی بھی وزیر اعظم، میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرا وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ تعلق تھا نہ ہے، اور نہ شہباز شریف کے ساتھ تعلق تھا نہ ہے، نہ ہی جناب جی نواز شریف کے ساتھ، شہباز کے ساتھ، زرداری کے ساتھ، بلاول کے ساتھ، میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہمیں پاکستان کا کوئی خیر خواہ وزیر اعظم نہیں ملتا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، جب پاکستان کا خیر خواہ وزیر ملے گا، پاکستان کو چاہنے والا، پاکستان کی عوام کی خدمت کرنے والا، اپنی زبان کو کنٹرول کرنے والا، لالچ کے بغیر، اور حضرت عمر فاروق جیسا انسان، ابو بکر صدیق جیسا حکمران، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ جیسا جب تک ہمیں کوئی حکمران نہیں ملتا، ہم کسی کو تسلیم نہیں کرتے، کسی کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہمیں وہ کوئی عشق نہیں ہے ان کے ساتھ۔ بعض بندے حیضہ کے مریض ہوتے ہیں، اتنا عشق اور جنون چڑھ جاتا ہے، ان کو حیضہ ہو جاتا ہے ان کے پیچھے۔ ہمیں عمران نے کئی کام نہیں دیا، ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے، عمران کو نہیں بچانا۔ ہم نے زرداری کو نہیں بچانا، نواز شریف کو نہیں بچانا، شہباز شریف کو نہیں بچانا۔ ہم نے اپنی قبر کو بچانا ہے، اپنی آخرت کو بچانا ہے، اپنی میدان محشر کی سختی سے بچنا ہے، اور ہم نے اپنی جنت کو بچانا ہے، ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ بس جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، جس نے ہمارے ساتھ کبھی سلام نہیں کیا، جو ہماری برادری کو نہیں جاتا، ہم اس کی خاطر اپنے ایمان کو ضائع کریں؟ تحفہ ہے ایسی زندگی پر، تحفہ ہے ایسی حکمرانی پر کہ جس حکمرانی کی وجہ سے ہم اپنا ایمان کھو بیٹھے۔ کیوں؟ ہمیں کیا دے رکھا ہے ان نے؟ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ بات عرض کر رہا تھا کہ جس وقت شہباز شریف کا وفد وہاں پہ پہنچا،
तो मस्जिद नबवी के अंदर रोज़ा रसूल के करीब चोर चोर के नारे लगे। वहाँ मस्जिद नबवी के अदब और रोज़ा रसूल के अदब और तक़द्दुस को पामाल किया गया। ऊंची आवाज़ें बुलंद की गई, गाली गलौज वहाँ पे बकी गई है। मैं कहता हूँ बदबख्त इंसानों, तुम्हें पता नहीं है कि किस मकाम के ऊपर तुम खड़े हुए हो, किस मकाम के ऊपर तुम खड़े हुए हो। ये वो मकाम है जहाँ फरिश्ते आते हैं दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए तो बाअदब होके आते हैं, जहाँ इंसान की आशिक के रसूल के एक मुसलमान की उस दरबार के अंदर जाके आंखें और पलकें झुक जाती हैं। वहाँ जाके इंसान अपनी ज़ुबान से दिल हाल बयान नहीं कर सकता, ज़ुबान से, बल्कि सिसकियों से हाल दिल बयान होते हैं। जहाँ पे इंसान का रग व रेशा भी खौफ और डर की वजह से कप कपाने लग जाता है। जहाँ इंसान का एक कदम उठते हुए तो दूसरा कदम सोचता है कैसे उठूं कहीं माँ महबूब की गुस्ताखी ना हो जाए। वहाँ ज़ुबान ऊंची करना और आवाज़ को ऊंचा करना, वहाँ पे नारेबाजी करना, वो भी सियासत के। और जिस मकाम, जिस दरबार के ऊपर आसमान के फरिश्ते अर्श छोड़ के दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए आते हैं, और जहाँ सारी दुनिया से आशिक के रसूल जनाब जी उछल उछल के हाज़िरी देने के लिए वहाँ नमाज़ें पढ़ने के लिए जाते हैं, ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, मुआजा शरीफ के सामने खड़े होके अल्लाह के हुजूर को हाल दिल सुनाते हैं अपनी सिस्कियों के साथ। आज उसी मकाम के ऊपर, उस दरबार के ऊपर तुमने नारेबाजी की, वो भी सियासत की, एक झूठी सियासत की, जिस सियासत के अंदर दगाबाजी, जिस सियासत के अंदर धोखाबाजी, जिस सियासत के अंदर झूठ और फरेब, जिस सियासत के अंदर यतीमों का माल खाया जाता हो, उस सियासत की खातिर तुमने नबी पाक के तक़द्दुस को और रोज़ा रसूल के जनाब जी अदब को पामाल कर दिया है। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा ईमान बचेगा? वहाँ पे तुम्हें दोबारा कलमा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तौबा इस्तिग़फ़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आहो जारी करो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, कहीं तुम्हारा ईमान भी दिल से ना निकल गया हो। ये रोज़ा रसूल है, दो जहानू शफ़ीउल मुज़निबीन का दरबार है, जहाँ सहाबाए किराम भी जिस वक़्त जाते थे तो उस वक़्त सहाबाए किराम भी अपनी पलकों को और आँखों को झुका लिया करते थे, कहीं रोज़ा रसूल की बेअदबी ना बन जाए। वहाँ गुफ्तगू करना ज़ोर से बेअदबी है, चे जाए कि सियासत के नारे लगाना, सियासत के नारे लगाना, वहाँ पे जनाब जी चोर चोर के नारे लगाना, ये कौन से इस्लाम है आपका? कौन सा इश्क़ रसूल है? आपको नहीं पता? जिस वक़्त तुर्की के शहनशाह, तुर्की के बादशाह ने, खलीफा अब्दुल हमीद सानी ने जिस वक़्त मस्जिद नबवी की तामीर का काम शुरू करवाया, तो उसने खलीफा अब्दुल हमीद सानी ने चंद बातों का एहतमाम किया। मस्जिद नबवी की तामीर के लिए चंद बातों का एहतमाम किया। पहली बात इस बात का एहतमाम किया, मस्जिद नबवी की तामीर करने वाले, मजदूरी करने वाले सारे हाफिज़ कुरान होंगे। नंबर दो, जितने भी मजदूर होंगे मस्जिद नबवी के अंदर काम करेंगे, जिस वक़्त काम शुरू होगा बावुज़ू काम शुरू करेंगे, बावुज़ू करते रहेंगे। नंबर तीन, जब तक काम होता रहेगा मस्जिद नबवी के अंदर तो उस वक़्त हर बंदा दुरूद व सलाम पढ़ता रहेगा, दुरूद व सलाम पढ़ता रहेगा। और मज़े की बात यह है कि जिस वक़्त मस्जिद नबवी का काम हो रहा था, वहाँ पे पत्थर की रगड़ाई जो मशीनों के साथ होती है और टैलों की रगड़ाई जो मशीनों के साथ होती है, तो शोर शराबा होता है। तो खलीफा अब्दुल हमीद सानी ने ये एहतमाम किया कि पत्थरों की रगड़ाई, ईंटों की रगड़ाई, टैलों की रगड़ाई मशीनों के साथ ये मस्जिद नबवी के मदीने के अंदर नहीं होगी, बल्कि मदीने के बाहर अलग तौर पे कहीं देहातों के अंदर जाके करो। क्यों? क्योंकि जहाँ पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दो जहाँ की हस्ती, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, मुराद मुश्ताकीन, जान आलमीन और सैयदुल अंबिया और सहाबाए किराम अहले बैत उज़्ज़ाम जहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, आराम फरमा है, उन वहाँ तो ऊंची आवाज़ से बात करना, ज़ुबान खोलना मना है, बेअदबी है, गुनाह है।
तो पत्थरों की रगड़ाई जहाँ क्यों हो, इसलिए कि पत्थरों की रगड़ाई, ईंटों की कटाई और टैलों की कटाई मदीने से बाहर जाके की जाए। वहाँ तो ये एहतिमाम था। आज सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पर, लेकिन अगर आपने रोज़ा रसूल, मस्जिद नबवी, बारगाह नबवी के तक़द्दुस को, आदाब को मलहूज़ खातिर नहीं रखा, तो फिर मैं इस बात के कहने पे मजबूर हूँ, फिर आपके और अबू जहल के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए मस्जिद नबवी के अंदर, रोज़ा रसूल के इस जगह मदीना रसूल के अंदर, जहाँ बड़े बड़े उलमाए किराम, बड़े बड़े औलिया अल्लाह वहाँ जाते हुए घबराते थे, ज़ुबान से बात करना बेअदबी समझते से, वहाँ तुम जाके जनाब जी चोर चोर के नारे, सियासत के नारे, कहाँ गया तुम्हारा इश्क़ रसूल, कहाँ है तुम्हारा जनाब जी ईमान? यही ईमान है? किसने तुम्हारे काम आना है? कल क़यामत के दिन अगर मेरे रसूल ने निकाह तुमसे फेर ली, अल्लाह के कुरान पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़, नबी के सामने अपनी आवाज़ों को बुलंद मत करो। अगर तुमने रसूल के सामने आवाज़ों को बुलंद कर दिया, तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे, ज़ाय हो जाएंगे। अब अगर कोई कहे कि ये तो उस वक़्त के ज़माने, जिस वक़्त रसूल ज़िंदा थे, मेरा दोस्त, जिस वक़्त रसूल ज़िंदा थे, आका ज़िंदा थे, आका दुनिया के अंदर तशरीफ़ फरमा थे, जिस तरह आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके सामने बात, ऊंची आवाज़ से बात करना गुस्ताखी और बेअदबी शुमार किया जाता था, आपके जाने के बाद भी आपकी कब्र मुबारक, रोज़ा रसूल, मस्जिद नबवी के अंदर खड़े होकर भी शोर मचाना, ऊंची आवाज़ से बात करना, ऐसा ही आपको गुनाह होगा जिस तरह आपकी ज़िंदगी के अंदर आप नबी पाक के सामने ऊंची आवाज़ से बात कर रहे हैं। जिस तरह वहाँ गुनाह लिखा जाता, आपके जाने के बाद भी आपकी मस्जिद के अंदर, दरबार के अंदर, रोज़ा रसूल के अंदर ऊंची आवाज़ से बात करना आपको वैसा ही गुनाह होगा जिस तरह आपकी ज़िंदगी के अंदर गुनाह होगा। तुमने क्या समझ रखा? मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, ये जान लो, इक़्तिदार आते जाते हैं, लेकिन खुदा और मुस्तफ़ा को नाराज़ मत करो, मत करो। ये जहांगीर, ये कौन था? ये जहांगीर खींचुए जो भी अला बला है, ये इमरान खान का एक चाहने वाला, और आज भी इसकी तस्वीरें इमरान खान के साथ मौजूद है, आज भी मौजूद है, और इसका पक्का वोटर था इमरान खान का। इसलिए आप जितने भी इक़्तिदार वाले हैं, जितने भी हैं, उसकी मज़म्मत बयान करें, चाहे वो इमरान खान हो, फवाद चौधरी हो, या वज़ीर दाखिला हो, या वज़ीर ख़ारजा हो, मज़म्मत करें और ये कहें हमारा इस बंदे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे, क्यों? इनको पता है। तो इसलिए एक इक़्तिदार की खातिर अपनी आखिरत को, कब्र को ख़राब ना करें, अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ ना करें, वरना कल क़यामत का दिन होगा, आप अल्लाह के नबी की बारगाह में जाएंगे, सामने जाएंगे, मेरा नबी चेहरा भी फेर लेगा, चेहरा। रोज़ा रसूल का तो इतना अदब है, देखें जो उलमा वहाँ पे गए हैं, जो अहबाब गए हैं मदीना रसूल में, जो गए हैं, वहाँ पे जब सफाई होती है, सफाई वाले जो झाड़ू हैं, वो झाड़ू आम नहीं है, पाकिस्तान वाले झाड़ू नहीं है, हिंदुस्तान वाले झाड़ू नहीं है, बल्कि जिस झाड़ू के साथ रोज़ा रसूल की, मस्जिद नबवी की सफाई की जाती है, वो झाड़ू तिनके वाले नहीं है, बल्कि रेशम वाले झाड़ू हैं जिनके साथ सफाई की जाती है, ताकि शोर शराबा ना हो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ ना पहुँचे। तो वहाँ तो इतना एहतिमाम कि झाड़ू भी रेशम वाले हैं, ताकि जिस वक़्त झाड़ू फेरा जाए शोर शराबा ना हो, और आप वहाँ पे ऊंची आवाज़ बुलंद करते हैं। कुछ अपने आप को देखें, अपने मन को देखो, अपने मन को देखो, ईमान को बचाओ।